हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। तो आज हम लोग डिस्कस करेंगे अबाउट द रॉयल एनफील्ड इन बांग्लादेश। तो अगर आप लोगों को पता नहीं तो मैं बता देता हूँ कि बांग्लादेश में रॉयल एनफील्ड बहुत साल तक नहीं था। अभी रिसेंटली शायद 6 या 7 महीने पहले रॉयल एनफील्ड वहाँ पर भी आ गया है। रीलॉन्च लॉन्च हो गया है इन बांग्लादेश। इंडिया से भले ही वो लोग इंडिया से इंपोर्ट करते हैं जो रॉयल एनफील्ड से रिलेटेड सामान हो गया, हेलमेट हो गया, बाइक्स हो गया, ये सब। बट स्टिल यार दे आर करंटली यूजिंग द रॉयल एनफील्ड। तो इसी से रिलेटेड एक न्यूज है जहां पर एक इंटरव्यूअर दो इंडस्ट्रियलिस्ट को पूछ रहे हैं कि क्यों आप लोगों ने गरीब गरीब देश बांग्लादेश में रॉयल एनफील्ड लेके आए हो इन दिनों। तो लेट्स वॉच दिस वीडियो एंड लेट्स हैव ए माय रिएक्शन एंड माय ओपिनियन अबाउट दिस न्यूज। तो लेट्स गो। আপনার কাছ থেকে একটু শুনবো, বাকিটা তাসকিন ভাই বলবেন। আমাদের পার ক্যাপিটা ইনকাম এখনও $2,500 বা $3,000 নিচে। তো 5 লাখ টাকার একটা বাইক বাংলাদেশের মানুষ কিনবে, এটা কিভাবে চিন্তা করলেন আপনারা? আচ্ছা, রয়্যাল এনফিল্ড ইটস জাস্ট নট এ মোটরসাইকেল। এটার নাম এই নামটারই একটা আপনার আভিজাত্য আছে। রয়্যাল এনফিল্ড অরিজিনালিটি হচ্ছে ব্রিটিশ। ডিউরিং সেকেন্ড ওয়ার্ল্ড ওয়ারে এই রয়্যাল এনফিল্ড মোটরসাইকেল দিয়ে এই হেলিকপ্টার থেকে বন্ধু লোক নামতো মেশিন নিয়ে যুদ্ধ করার জন্য। 2 নম্বর হচ্ছে এটার যে একটা লংজিভিটি, আপনি পুরো স্টিলের তৈরি, কোনো প্লাস্টিক নাই। কিন্তু আমি একটা আমার টিভিতে বলেছিলাম যে বাবা কিনলে তার নাতিও চালাতে পারবে। তাসকিন ভাই, আমরা যতদূর জানি যে এই মোটর বা অটোমোবাইলের প্রতি আপনার একটা ভালোবাসা জন্মে গেছে। এখন আপনি এটা ছাড়া হয়তো চিন্তা করতে পারেন না। এটা কি বাবার কাছ থেকে পাওয়া, নাকি এইটার প্রতি কাজ করতে করতেই ফ্যাসিনেশনটা তৈরি হয়ে গেল? এটা আমার 26তম বছর ব্যবসায়। তো প্রথম 3 বছরে আমাকে একটা টেবিলও দেওয়া হয়নি, চেয়ারও দেওয়া হয়নি যখন আমরা বিআরটিসি ভবনের বসতাম। তো আমার তখন থেকে একটা ন্যাক ছিল, রাস্তায় রাস্তায় ঘুরে বেড়াতাম। আমি 64টা জেলায় আমার ঘোরা আছে যে ট্রান্সপোর্ট সেক্টরটাকে কিভাবে আমরা বড় করতে পারি। এরকমও অনেক সন্ধ্যা গেছে, রাত গেছে, আমি বেডফোর্ড ট্রাকের নিচে বসে বসে ড্রাইভারদের সাথে কথা বলতাম। এটা মানে গর্ব গর্ব বলি, আমি মহাখালী বাস টার্মিনালে গিয়েছিলাম 99 সালে। তো ওনারা আমাকে বলছে যে তুমি অশোকা লেল্যান্ড বেচতে আসছো, টিপু সাহেবের ছেলে না হলে তোমাকে মানে ডাল দিয়ে ভাত দিয়ে খেয়ে যাও, না তো তোমাকে বেঁধে রাখতাম। আর আজকে ওই জায়গাটা 96% গাড়ি হলো অশোক লেল্যান্ড গাড়ি। সো ইটস মানুষের পারসেপশন, একটা নিজের ইচ্ছা, অশোক লেল্যান্ডের সাপোর্ট, একটা গুড প্রোডাক্ট। আর আমি একটু বলতে চাই, রয়্যাল এনফিল্ড যখন বললেন 5 লাখ বললেন না, এটা শুরু হয় 3 লাখ 3.5 লাখ থেকে। আর এটাকে লাইফস্টাইল বলা হয় কেন, এটা কিন্তু আপনি যে বললেন আমাদের পার ক্যাপিটা ইনকামের সাথে, আমাদের বাংলাদেশে তো 30 লাখ টাকার গাড়িও আছে, 3 কোটি টাকাও গাড়ি আছে। সো 3 কোটি টাকার গাড়িটা তো সবার জন্য না। সো এটাকেও বলা হয় যে আজকে যদি আমাদের কম্পিটিশনে যারা কমিউটার বাইক চালায় 100-150 সিসি, ওটার মতো কিন্তু বিক্রি হবে, এটা আমাদের এক্সপেকটেশন না, ওটার 4 ভাগের 1 ভাগ হবে। সো এটা মোর শখের বাইক। তো শখ কি শুধু যারা গাড়ি চালায় সে প্রাডো 3 কোটি টাকা দিয়ে কিনবে তার শখ থাকতে পারে, তো একটা মফস্বল লোকেরও, যারা একটা মধ্যবিত্ত পরিবারেও তো শখ থাকতে পারে। আপনার আব্বার কোন পরামর্শ, কোন গুণ আপনাকে বেশি অনুপ্রাণিত করে? উনি এখনও আমাদের 3 ভাইয়ের থেকে সবচেয়ে আগে অফিসের জন্য বেরিয়ে যায়। সো ওনাকে আমরা আটকে রাখতে পারি না। সো এই জিনিসটা সবসময় আমরা 3 ভাই যে কোনো সময় বলি যে এখনও বাবা ছাড়া আমাদের স্থান 3 ভাইয়ের কোথাও হয়তো বা নাই। যে কোনো সময় সবসময় যেটা দেখেছি, আমরা কোনো সময় তো ধরেন কোনোভাবে গভর্নমেন্টের অত বিজনেস করি না, সব প্রাইভেট সেক্টর, ফুডের আর গাড়ি ঘোড়া নিয়ে করেছি। যেখানে গিয়েছি মানে ক্লাবসে বলেন, সোশ্যাল ক্লাব বলেন বা মন্ত্রণালয়ে গেলে সবসময় সম্মানের চোখে দেখেছে। সো ওইটাও আবার আমাদেরকে মনে করে যে এই সম্মানটা কিন্তু 1 দিন 2 দিনে আসে না। ओके दोस्तों, तो वीडियो ख़त्म हो गया। तो इस वीडियो में बेसिकली इन लोगों ने डिस्कस किया अबाउट द ग्रोथ ऑफ रॉयल एनफील्ड ब्रांड इन बांग्लादेश। तो बांग्लादेश में क्या हुआ रिसेंटली, जो रॉयल एनफील्ड का बाइक्स है, फॉर एग्जांपल क्लासिक हो गया, बुलेट हो गया, एंड देन ये हंटर हो गया, ये सब बाइक्स रॉयल एनफील्ड में इंडिया से इंपोर्ट करके वहाँ पर शायद किसी बिजनेसमैन ने इन दोनों, ये दोनों ही है शायद, इन दोनों में से कोई एक हो गया या फिर दोनों ने ही पार्टनरशिप करके वहाँ पर बेचने की कोशिश की होगी। एंड इन जेंटलमैन या फिर मतलब बुजुर्गों ने, सीनियर पर्सन्स ने ये कहा कि उन लोगों का एक्सपीरियंस शेयर किया अबाउट द रॉयल एनफील्ड। तो पहले तो
जो बड़ा वाला था, सीनियर था, उसने उन्होंने बोला कि रॉयल एनफील्ड ब्रिटिश से लाया गया है। हाँ, ये भी ठीक है, ब्रिटिशर्स का ही ब्रांड है रॉयल एनफील्ड, बट परचेज बाय इंडिया एंड करंटली रूल्ड बाय इंडियंस। तो रॉयल एनफील्ड पहले ज़माने में ऊपर से फेंक दिया जाता था बाय द हेलीकॉप्टर्स, एंड देन नीचे जो मिलिट्री ट्रूप्स था ये लोग यूज़ करते थे नीचे, एंड देन बेसिकली मिलिट्री पर्पज़ के लिए था रॉयल एनफील्ड। एंड वहाँ पर रॉयल एनफील्ड में कोई भी प्लास्टिक का यूज़ नहीं किया गया है। वहाँ पर बेसिकली स्टील से बनाया जाता है, मेटल से बनाया जाता है। तो बेसिकली इट्स ए मेटेलिक बॉडी। यहाँ पर कोई भी प्लास्टिक का यूज़ नहीं किया गया है, जैसे कि R15 या फिर जिक्सर वगैरह में प्लास्टिक का यूज़ किया जाता है। रॉयल एनफील्ड में कोई भी प्लास्टिक नहीं है, 100% मेटल है। एंड देन सेकेंड जो सीनियर पर्सन थे, इसने बताया कि कैसे उनका रॉयल एनफील्ड के साथ जुड़ाव हो गया, कैसे अशोक लेलैंड के साथ जुड़ाव हो गया। तो अगर आप लोगों को पता नहीं तो मैं बता देता हूँ, अशोक लेलैंड भी इंडिया का ही ब्रांड है, मेड बाय द इंडियन फॉर द इंडियंस। एंड आई थिंक रॉयल एनफील्ड की तरह है, अशोक लेलैंड को भी इन लोगों ने शायद इंपोर्ट किया होगा, क्योंकि वो बांग्लादेश में भी अशोक लेलैंड का बहुत सारा बसेस है, जैसे कि मैं वीडियोस में देखता रहता हूँ। एंड देन आई थिंक बांग्लादेशी लोगों ने भी रॉयल एनफील्ड को मतलब परचेस किया होगा ज़्यादातर। एंड इसने बताया कि भले ही जो जनरल पब्लिक हो गया, कम्यूटर सेगमेंट्स में फॉर एग्जांपल स्प्लेंडर चलाते हैं, ग्लैमर चलाते हैं, तो उन लोगों के लिए रॉयल एनफील्ड नहीं है। रॉयल एनफील्ड है जिनके पास शौक है अपना। एंड मुझे एक बात सुन के आश्चर्य हुआ कि इन्होंने बताया कि रॉयल एनफील्ड का प्राइस है इन बांग्लादेश इट्स 5 lakhs। भाई इंडिया में ये लगभग स्टार्टिंग इट्स स्टार्टेड फ्रॉम 2 lakhs, अप्रोक्सीमेटली 2 lakhs। एंड स्टेट्स वाइज डिपेंड करता है, अप्रोक्सीमेटली 2 लाख हो गया। एंड बांग्लादेश में ये प्राइस हो गया 5 lakhs। इट्स ए ह्यूज गैप भाई, पता नहीं क्यों। आई थिंक करेंसी का डिफरेंस होगा एंड कोई इंपोर्ट ड्यूटी वगैरह लगा होगा, बट स्टिल यार इट्स रियली ह्यूज। 5 लाख से तो यहाँ पर भाई बहुत ज़्यादा बड़ा बड़ा बाइक आ जाता है, एप्रिलिया का बाइक आ जाता है, सुपर बाइक वगैरह 457 वगैरह। ओके, कम फ्रॉम द एयरपोर्ट। एंड आई थिंक रॉयल एनफील्ड को बांग्लादेश में भी फोकस करना चाहिए, सभी इंडियन ब्रांड्स को बांग्लादेश में जाना चाहिए एंड वहाँ पर अपना मतलब साम्राज्य खड़ा करना चाहिए, वहाँ से प्रॉफिट लाना चाहिए इंडिया में। इट्स रियली गुड थिंग फॉर इंडिया एंड फॉर बांग्लादेश, बोथ ऑफ द कंट्रीज। क्योंकि इन दिनों कोई भी मतलब इकोनॉमिकल एक्सचेंज वगैरह बांग्लादेश के साथ इंडिया का कोई भी उतना बड़ा वाला इकोनॉमिक एक्सचेंज नहीं हो रहा है। तो रॉयल एनफील्ड को उसमें फोकस करना चाहिए कि कैसे हम लोग अपना बाइक्स को बांग्लादेश में सेल कर सकते हैं। टाटा को भी सेम वे में फोकस करना चाहिए, सभी ब्रांड्स को एक्चुअली। तो दोस्तों, थैंक यू फॉर वाचिंग द वीडियो। आज के लिए इतना ही। हैव अ नाइस डे एंड बाय बाय। Three, four.